Hello dear students, welcome to today's class. So I hope you all have seen the previous videos, and some students told me that they did not find the video today. So I apologize for that my videos were not there just for today. Now I mean on 20 for one day, but now here is the video where we will be talking about the actually in the online session some of the students have asked me about the gravitational pull. They have asked me about the neap tide and spring tide. Okay, so already I have done it in the previous class, but I felt I should again talk about it, about the neap tide and the spring tide. I explained you with the help of the diagram only, the diagram that is given in the book. आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. ओके, बट स्टिल आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन. पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर टाइड्स. गॉट इट? पहले तो टाइड समझो. रिदमिक इन अ वेरी प्रीवियसली भी मैंने आपको बताया है कि जैसे बहुत ही रिदमिक, बहुत ताल में ये पानी ऊपर नीचे आता है. लहरें भी होती हैं. यू नो, ओशन हैज़ गॉट अ डिफरेंट साउंड ऑल टुगेदर. गॉट इट? जो समुद्र होता है, समुद्र की एक आवाज़ ही अलग होती है. तो द tides that are formed in the ocean and the way the water goes up and comes down, that is the tidal energy. And these days the scientists have found out, and the scientists have tried to understand nahi, many countries are doing it, that the energy of the tides, बिकॉज पानी ऊपर आ रहा है फिर पानी नीचे जा रहा है, तो इसमें कुछ तो दे रहा है, इज सम मोशन दैट इज हैपनिंग. जो मूवमेंट हो रहा है, जो पानी ऊपर नीचे आने का जो एक प्रोसेस है, from that process some of the scientists are trying to extract energy. इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं. तो हाई टाइड क्या है? हाई टाइड से पानी जो है बिल्कुल किनारे आ जाता है. द वाटर कम्स ऑन अ कंप्लीट सी साइड. rise and fall of ocean water is there twice in the day. It is called as a tide. And the high tide is there when the water covers much of the shore. पूरा सी साइड में the water is full. क्या होता है कि ऐसे तो every time you don't find water on the sea side. समुद्र का जो किनारा होता है ना, वहाँ पे एवरी टाइम यू विल नॉट फाइंड वाटर जहाँ पे कि जहाज आ सके. यू नो, पानी के जो बड़े जहाज होते हैं, द बिग शिप ऑफ द वाटर, that is unable to come on the sides when the water is low, because ship can sail on the sea only. बड़े बड़े जो पानी के जहाज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पानी जब तक नहीं होगा तब तक कैसे चलेंगे ये जहाज. So when high tides are there, these ships come on the coast. They come on the coastal area, जहाँ पे एकदम the people can see, अरे इतना बड़ा सा ship which they have seen on the ocean बिल्कुल साइड में नज़र आता है, शहर से बिल्कुल लगा हुआ. बिकॉज हाई टाइड्स आर देयर, लॉट ऑफ वाटर इज देयर ऑन द शोर, एंड देन दीज शिप्स कम एंड दे टेक रेस्ट ऑन द सी शोर. समुद्र के पास टिकते हैं ये. एंड देन देर इज द राइज एंड द फॉल ऑफ ओशन वाटर. ट्वाइस इन अ डे, एक दिन में ये होता है when the water comes on the high level and then water comes on the low level. When it is a high tide, बहुत तेज जब पानी आता है तो water covers much of the shore, पूरा किनारे तक पानी आ जाता है. And when the low tide is there, then water falls to its lowest level. बिल्कुल नीचे तक पानी चला जाता है. Water goes to a very low level and goes back from the shore. It recedes. Recedes means going back. लो टाइड हुई तो पानी वापस चला गया, हाई टाइड हुई तो पानी आके किनारे पे लग गया. गॉट इट? सो हाई टाइड एंड लो टाइड इज देयर. अब देखो, ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज अ कंप्लीट फंक्शन दैट इज कॉल्ड एज नीप टाइड. ठीक है, ये देखो नीप टाइड इज हियर.
आई चेंज द कलर. ब्लैक है ना तो उसमें दूसरा कलर यूज़ करना पड़ेगा. आई लव चेंजिंग कलर्स. आई विल यूज़ दिस ग्रीन कलर टुडे. वाओ, वेरी नाइस. Got it? So here it is, the diagram that you can see, neap tide. इसमें क्या होता है देखो प्लीज, पहले तो आप ये समझो. दिस इज सन. ओके, इज द सन मूविंग? सन इज नॉट मूविंग. ओके, अर्थ इज मूविंग and moon is moving. Got it? Now I am not going to explain you the phenomena of rotation and revolution. देखो rotation and revolution आपको पता है. Okay? Earth is rotating on its axis, अपने axis पे, and revoluting on the, इधर से ऐसे गए, इधर से ऐसे आए, ये revolution हो रहा है. ठीक है? A complete circle is made. Earth is moving, moving, moving. On its axis also it is moving. And around the sun also it is moving. Got it? एक तो ये अर्थ का मूवमेंट हो गया अराउंड द सन, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. सेम थिंग इज हैपनिंग विद द मून ऑल्सो. मून इज, इट कम्स हियर एंड हियर, हियर, देन हियर एंड हियर. कंप्लीट सर्कल ऑफ द अर्थ. ठीक है? तो व्हेन इट इज मूविंग, वन टाइम कम्स, एक बार ऐसा मौका आता है व्हेन द मून इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन. देखो सन यहां पे है, मून इज हियर, सबसे दूर. नाउ व्हेन द मून इज सो फार ऑफ, तो सन की रेज यहां बहुत कम पहुंच रही है. सन रेज आर नॉट रीचिंग डायरेक्टली टू द मून. ओके, then what happens? Strong gravitational pull is there. एक तो मून का ग्रेविटेशनल पुल है, सन का ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ का भी है. नाउ व्हेन द ग्रेविटेशन इज देयर, तो द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल इज एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द अर्थ सर्फेस. ओके, सन का भी देयर इज वन ग्रेविटेशनल पुल एंड मून का भी देयर इज ग्रेविटेशनल पुल. तो अर्थ को दोनों तरफ से खिंचाव होता है. ऑन वन साइड इज सन एंड ऑन वन साइड इज मून. सो दिस प्रेशर दैट इज देयर, ये जो दिस प्रेशर दैट इज देयर, इट कॉजेज द टाइड्स. बिकॉज ऑफ दिस पुल फ्रॉम टू साइड्स, इट इज कॉजिंग द टाइड. टाइड का कारण है, just understand that the reason for the tide is the gravitational pull. Okay, and water of the earth is closer to the moon. जो moon के पास जो water is there, it gets pulled under the moon's gravitational force. moon का जो earth is also getting pulled ना, earth का भी there is gravitational force and moon का भी gravitational force is working. So what happens when from both the sides the gravitational force is there, the water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of moon's gravitational. क्योंकि you can see here is earth and here is moon. Now what happens, moon का gravitation के वजह से all the water that is here, ये सारा you all know ना, this is all water. Land is only 27%. Rest 73% is all water. तो 73% water it gets pulled towards the moon. Moon attracts the water. Okay, the moon's gravitational force that is there, it is attracting the water. As a result, what happens? That जिस दिन full moon होता है, try to understand when one day in a month, one day you will see full moon. पूरा चांद नजर आता है. And new moon days are there. Sun, moon and earth. ठीक है, they all come in the same line. ये देखो. Can you see this? Because अभी moon is traveling ना, मैंने पहले ही आपको डायग्राम बताया था. तो moon is traveling from here, here and it comes here. अभी moon यहाँ पे आ गया. Now the moon is here.
sun is here, earth is here, and moon is in between. So when this kind of a situation is there, then it is called as spring tide. Got it? Now full moon के time पे, the new moon days, sun, moon and earth are in the same line and the tides are highest. पानी इतना ऊंचा जाता है ना, you know, some of the poets who are there, पहले के ज़माने के जो poet होते थे वो कहते थे समुद्र का पानी चांद से मिलने के लिए बार बार उछाल मार रहा है. The sea water wants to touch the moon. Got it? That's why it is going so high. They used to say in a poetic line, कविता सुनाने के चक्कर में ऐसे, लेकिन this is the reality. Actually it was not kavita. I was not sharing the kavita with you. ठीक है? This is the scientific phenomena that works behind the high tides. High tides के लिए यही साइंस काम करता है, where the earth's ocean water is always getting pulled towards the moon. And इतनी तेजी से moon is pulling it कि gravitational pull of the moon is highest when there is the full moon day. तो because of this high tides are there. full moon day में there is high tides. And इसी high tide को क्या कहते हैं? We call it as spring tides. Got it? And moon is the first and the last quarter. पहला तो moon has come here. ठीक है? We have already seen moon was here. From here it came to here. Then here. Then got it? इसके बाद यहाँ से moon comes here. Traveling. Moon is traveling ना? Moon is continuously traveling. एक बार moon का distance ये हो गया. And then moon's distance is here also. Neap tide. Neap tide is also 2 times and spring tide is also 2 times. Got it? फिर moon goes here and then here. तो sun, moon, earth are in the same line. एक line में आ जाते हैं. So when the sun, moon and the earth, they come on the same line, at that time we see the spring tides. Got it? So when the moon is in its first and the last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite directions. Diagonally opposite कैसे? Got it? And these tides are called as neap tides. अभी हमने जो पढ़ा, just now the diagram that I had drawn, कि here is the sun, here is the earth and here is the moon, M. तो sun की indirect heat is falling here. इसी तरह से जब moon is here तो sun की indirect heat is falling here. Okay? These tides are called as neap tides. इस तरह के tide को क्या कहते हैं? Neap tides. Okay? अभी हाई टाइड्स का बहुत, देयर इज लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ द हाई टाइड्स. क्या बेनिफिट्स हैं? इट हेल्प्स इन नेविगेशन. नेविगेशन मीन्स द शिप विच इज सेलिंग ऑन द सी. समुद्र के ऊपर जो जहाज चल रहे हैं, दे फाइंड देयर वेज, उनको चलने में आराम हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस हाई टाइड. लॉट ऑफ वाटर कम्स ऑन द सरफेस. मतलब समुद्र के ऊपर काफ़ी सारा पानी आ जाता है, काफ़ी देयर इज़ लॉट ऑफ मूवमेंट ऑन द ओशन. तो इसके वजह से क्या होता है, दैट द navigators who are there, the people who are traveling on the sea, they find it very comfortable, and the ship arrives at the harbor more easily. बहुत आराम से ये सी साइड पे आते हैं. सो हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन. हाई टाइड्स के वजह से क्या होता है, when the water has increased, तो it gives benefit to the fishermen. खूब सारी मछलियाँ जो बिल्कुल समुद्र के अंदर रहती हैं ना, वो सब आके ऊपर वो करने लगती हैं. ठीक है? वेरी इंटरनल द इनसाइड फिश, जो कि मतलब रोज़ नहीं नज़र आते हैं, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड. दोज काइंड ऑफ फिश आर सीन ऑन द अर्थ ऑन द ओशन सर्फेस. सो फिशिंग एंड द फिश दे कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड. बिल्कुल समुद्र के पास आ जाते हैं ये फिश. एंड इसकी वजह से क्या होता है, फिश आर प्लेंटीफुल कैच. व्हेन द फिशेस कम ना, दे डोंट कम. जब भी मछली आती है जाल में, जब भी मछली फंसती है तो इट इज़
like thousands of fish together, एक साथ, सब एक साथ रहते हैं. ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज एनिमल्स ऑल्सो कि उनके अंदर एकता हो सकती है लेकिन हमारे अंदर नहीं हो सकती. ओके, चलो ठीक है, दैट इज़ देयर फिनोमेना, दैट इज़ देयर वे ऑफ लिविंग. God has made them like that only, but then respecting others and love for everyone, that is an important feature. So tides का rise and fall जो है, it is because of the sun's effect, we have already discussed. और इस टाइड का क्या करते हैं, दिस टाइड इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस. कहीं कहीं पे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज सेलेक्टेड एंड जनरेटेड so that easy availability of current is there. हाँ, ये जो इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट्स आर देयर, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी है, अगर सोच लो 2 दिन के लिए लाइट चली जाए तो क्या होगा. तो दिस एनर्जी एट टाइम्स नहीं, एवरी टाइम इट इज कमिंग फ्रॉम द tides. Got it? So this is also called as the tidal energy. Now we will understand about the ocean currents. Currents. What are currents? Yes, you are right. Currents are continuous movement of sea water. Ocean के ऊपर the streams of water, just see it is mentioned here. Ocean currents are streams of water flowing constantly. लगातार ये पानी बह रहा है on the ocean surface in a definite direction. एक ही तरफ ये हवा चलती है, ठीक है. अब पानी जो है वो मूव कर रहा है, वो एक ही तरफ. इट डजंट चेंज इट्स पाथ. some water bodies are flowing towards east and some water bodies are flowing towards west according to the direction it is started. Got it? It has not started means God has created in that manner. इनका नाम पड़ा है according to the directions it is flowing. Streams of water flowing constantly, लगातार ये पानी बह रहा है on the ocean surface in definite directions. And ocean currents that are there, ये जो पानी है, it may be hot, it may be cold also. तो warm ocean currents जो है, ज़्यादातर most of the time we find the warm ocean currents near the equator, okay, and move towards the poles. ये पता है, I have already we have done this map in the previous chapter where I have posted this Earth's complete atmosphere phenomena. एयर जैसे मूव करते हैं ना, जिस तरह से एयर मूव करते हैं उसी तरह से वाटर करेंट्स आर ऑल्सो मूविंग. गॉट इट? तो कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर टू द हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स. सबसे पहले पोल के पास जितना भी that is the water that is flowing extremely cold. Because poles are the place जहाँ हार्डली सन रेज पहुँचती है, मतलब सूरज की किरणें ही नहीं पहुँच रही हैं. तो आप समझ सकते हो, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि हाउ कोल्ड इट माइट बी. सो वार्म ओशन करेंट्स, जो गर्म पानी है, वो तो इक्वेटर में तो डायरेक्ट सन हीट पड़ती है. ओके, द सन्स हीट इज सो डायरेक्ट दैट द ओशन करेंट्स दैट आर देयर आर एक्सट्रीमली वार्म. पूरा पानी हीट हो जाता है. एंड कोल्ड करेंट्स कैरी वाटर पोल के तरफ से, पोलर रीजन के तरफ से. यू नो, आई हैव ऑलरेडी मेड दिस, I am again making it for you. These are the poles. This is North Pole and this is South Pole, SP. Remember, अभी याद आया, वो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था. Yes, it is the same thing. तो यहाँ का जो extreme cold current is there, that is moving towards the warm currents. High pressure से low pressure के तरफ air always moves. So जैसे कि अब according to the air that is there and according to the way air is flowing, they are you know, please understand, cold currents come from polar to the higher latitudes. ये देखो, here it is there, North Pole, I'm sorry, please understand,
North Pole NP and South Pole SP. So air currents are moving and ये है equator. Hottest air is here, so and coldest air is here. Ocean current is here. This cold air is moving towards the lighter side. क्योंकि यहाँ पे एयर है ही नहीं. एयर मतलब इट इज़ एक्सपैंडिंग ना, हल्का हल्का सा चलते हुए ये हवा बह रही है. सो अभी यहाँ एग्जाम्पल इज गिवन. लैब्रेडर ओशन करंट कोल्ड करंट है, ठीक है. गल्फ स्ट्रीम इज अ वार्म करंट. ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया and warm currents bring about warm temperature over land surface. गर्म पानी से गर्मी होगी और ठंडे पानी से ठंडा होगा, ठीक है. The water currents that are there are hot currents and warm currents. तो warm and cold currents जहाँ मिलते हैं वहाँ पे the best fishing ground होता है. Where the warm ocean currents are meeting with the cold ocean currents. Fish इस तरह के माहौल को बहुत पसंद करती हैं. भाग भाग के दे गो एंड दे ले डाउन देयर एग्स देयर ओनली वेयर द वार्म करंट्स वार्म एयर वाटर करंट्स आर मीटिंग विद द कोल्ड वाटर करंट्स. यहाँ पे वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे कौन सा ओशन करंट इज फ्लोइंग इन विच डायरेक्शन. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. अभी हम ओशन करंट्स देखेंगे. जस्ट सी, लेट्स सी द ओशन करंट थ्रू द वर्ल्ड मैप. सबसे पहले इंडिया से शुरू करते हैं. वी आर इंडियंस, सो लेट्स अंडरस्टैंड विच ओशन करंट्स आर फ्लोइंग इन इंडिया. ये देखो, दिस इज हियर एंड दिस इज हियर. एक ओशन करंट इधर से आ रहा है, एक ओशन करंट इधर जा रहा है. दिस इज इंडियन ओशन, ठीक है. पानी जो बह रहा है, विच डायरेक्शन द वाटर इज फ्लोइंग, अकॉर्डिंगली द करंट इज डिसाइडेड. गॉट इट. तो दिस इज इक्वेटर. ये देखो, ये इक्वेटर है. हम इक्वेटर से बहुत पास है, इसीलिए हमारे यहाँ अक्सर बहुत गर्मी पड़ती है. when we are so near to equator ना, तो direct heat is affecting our environment और काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ता है हमको. यहाँ पे the currents that are flowing, ये पानी इधर जा रहा है and then water is coming this side, एक इधर डायरेक्शन में, एक इधर डायरेक्शन में, and equatorial counter current is there. काउंटर करंट क्या होता है ना बेटे, दैट फ्रॉम वन साइड द वाटर इज फ्लोइंग एंड फ्रॉम अदर साइड ऑल्सो वाटर इज कमिंग. तो काउंटर करंट कि एक देखो, वन साइड वाटर इज फ्लोइंग, इधर का करंट एंड फ्रॉम हियर ऑल्सो करंट इज कमिंग. तो साउथ इक्वेटोरियल करंट इज देयर. ओके. वेस्ट ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया इधर है. जस्ट सी, हियर इज ऑस्ट्रेलिया. हम यहाँ पे हैं एंड हियर इज ऑस्ट्रेलिया. गॉट इट. यू कैन सी ऑस्ट्रेलिया हियर. तो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट्स आर कमिंग फ्रॉम हियर. और हम चूंकि इक्वेटर के पास हैं. अच्छा, एक चीज समझना है आपको, ऑल दीज गोज इन रेड आर वार्म करंट. गर्म पानी है सारा, ठीक है. गर्म पानी जो है वो बह रहा है, तो वार्म करंट है. ओशन के ऊपर कंटिन्यूअसली सन्स हीट इज फॉलिंग. लगातार जो सूर्य की गर्मी पड़ रही है ऑन द ओशन सरफेस, उसके वजह से दिस करंट इज देयर. गॉट इट. सो वार्म करंट इज देयर. इधर हमको देखो, इन दिस एरिया you will hardly find any cold current. कोई भी blue arrow नज़र आ रहा है आपको? No. तो all the warm air currents are moving towards our country. हमारे देश के आसपास जितना भी है, it is all warm current. Got it? This is there. ये देखो, यहाँ पे we have the,
ठीक है, ये देखो मैंने बताया था ना, ऑल द ब्लू कोल्ड करंट मतलब ठंडा पानी बह रहा है, एंड ऑल द रेड्स आर वार्म करंट, गर्म पानी। ओशन इज सो मच ऑफ वाटर, और लगातार उसके ऊपर सन की हीट पड़ेगी तो गर्म हो ही जाएगा। अभी ये देखो यहाँ पे आपको बहुत कम ये यू विल फाइंड ऑल द कोल्ड करंट हियर। दिस इज साउथ पोल। पोल के तक तो सन की रेस पहुंच ही नहीं रही है। When the sun rays are not reaching the pole, obviously the currents would be cold. थोड़ा बहुत warm current is coming here from Brazil coast. ये आप देखें अमेरिका यहाँ ब्राज़ील के थ्रू ये थोड़ा सा going towards the south pole. यहाँ पे we have the South Atlantic Ocean. Got it? So the water currents are moving from here. अब लाओ एक बार इंडिया का देख लिया, नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। यहाँ से शुरू करते हैं। पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड ये 0 डिग्री जो आप देख रहे हो, दिस इज NP। व्हाट डू यू मीन बाय NP? नॉर्थ पोल। यस, अब मैं आपको क्या दिखाऊंगी? नाउ आई एम शोइंग यू SP। व्हाट इज SP? साउथ पोल। ओके, जस्ट फन, थोड़ा सा फन भी होते रहना चाहिए ना। So you can see the currents that are coming. Here we have all, ये जो सारा है ये भी करंट। पहला तो आप ये देखो, here there is no करंट का कोई साइन ही नहीं बना है। There is no blue arrow, there is no red arrow। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट चल ही नहीं रहा है। There is no current here। क्यों? अरे it is all ice। नॉर्थ पोल है ना, वहां पे तो सारा जमा हुआ है। इट इज ऑल आइस। तो व्हेन आइस इज देयर तो हाउ विल द वाटर मूव देयर? उसके बाद जब थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे यू विल फाइंड, ये देखो यहाँ अलास्का करंट इज हियर, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट इज हियर, कैलिफोर्निया इज हियर। फ्रॉम वन साइड द वार्म करंट इज कमिंग, द कोल्ड करंट इज कमिंग। Then here is the equator. This is equator. Extremely hot place. यहाँ का पानी पूरा warm current, यहाँ पे you will hardly find any cold current here. ठीक है? Just see the counter current जो यहाँ से चल रहा है. The same counter current is coming towards India. यही counter current जो है वो इंडिया में आते हैं. And equator में one side, पूरे equator में you will find the air coming from the currents, water currents coming from both the directions. Got it? अब यहाँ पे आप देखो, you have the west wind drift, यहाँ से Humboldt, that is Peru, ये देखो साउथ अमेरिका। बाय दिस देखो, ये वाला जब करोगे, when you will be seeing this diagram, you will understand the whole world. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सारे आपको प्लेसेस क्लियर हो जाएंगे। एंड बीइंग अ स्टूडेंट एंड बीइंग अ स्टडिंग ज्योग्राफी, यू शुड नो ईच एंड एवरी प्लेस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। सो व्हेन इट इज देयर इन योर माइंड, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। ठीक है, आप कोई भी तरह का क्वेश्चन होगा वो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो पेरू है, देन यू हैव द हियर यू हैव द फॉकलैंड। साउथ अमेरिका में बिल्कुल नीचे की तरफ, हियर इट्स वेरी कोल्ड, पोल के पास है ना बिल्कुल, दैट्स वाई। देन सम कोल्ड करंट इज कमिंग हियर, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट हियर, यहाँ से द करंट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। गॉट इट? ये देखो ऑस्ट्रेलिया में वन थिंग इज वेरी नाइस, इंडिया में भी है लेकिन यहाँ पे क्या है, टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया इट्स वेरी वार्म बिकॉज ये इक्वेटर के पास है, एंड टुवर्ड्स साउथ ऑस्ट्रेलिया इट्स वेरी कोल्ड क्योंकि दैट साइड दे आर नियर टू द इक्वेटर। तो ऑस्ट्रेलिया विटनेसेस बोथ द काइंड ऑफ क्लाइमेट्स। गॉट इट? तो दिस इज देयर एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट इज देयर, काउंटर करंट इज देयर। हियर यू हैव, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जापान पे है, दिस इज जापान। ये देख रहे हो, छोटा सा आइलैंड कंट्री। ओके, एंड यहाँ पे भी फ्रॉम वन साइड द कोल्ड करंट इज कमिंग, फ्रॉम वन साइड द हॉट करंट इज कमिंग, देन क्यूरोशियो करंट इज देयर। ओके, देखो these are the names of the water currents that are flowing in different directions
एंड हियर यू हैव द पैसिफिक ओशन, फिर हियर यू हैव इक्वेटर. इक्वेटर में यू नो इट्स वेरी हॉट, सारा कुछ इतना गर्म हो जाता है. एंड देन यू हैव जस्ट सी Java, Sumatra, all these are here on the equator. लेकिन सबसे ज़्यादा हीट का असर जहाँ पड़ता है दैट इज़ दिस प्लेस एंड दिस इज़ अफ्रीका. एंड हियर ओनली वी हैव द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. कौन सा डेजर्ट है? यस, सहारा डेजर्ट. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इन्फ्लुएंस दीज वाटर करेंट्स हैव ऑन द सरफेस ऑफ द वर्ल्ड. पूरी दुनिया पे इसका कितना असर पड़ता है. एंड ऑल द वेदर चेंजेस एंड द क्लाइमेटिक चेंजेस दैट हैपन, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज ओशन करेंट्स. गॉट इट चिल्ड्रन? सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में अगेन आई विल एक्सप्लेन यू द ओशन करेंट्स एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चन एंड आंसर्स. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.